Step 2. Click on the open button. Recently opened document appear on the file menu and you can click any of this document to open them. The open dialog box appear. Step 3. Click on these areas to navigate to the folder or drive where you stored the file. Step 4. Click on name of the file that you want to open. Step 5. Click on open. The file open in the program window. Save a document. You can save your document for future use. Saving a document allow you to review it later and edit the document. Save file can be used on other computer also. अब आप अपनी फाइल को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हो और उसको दूसरे फाइल के अंदर भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, कैसे करोगे? स्टेप 1. क्लिक ऑन फाइल टैब. Backstage view will appear. Step 2. Click on the save or save as button. You can click the save button on quick access toolbar to save the file. The save as dialog box appear. आपके सामने डायलॉग सेव का बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप 3. क्लिक ऑन दिस एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर in which you want to save the file. Step 4. Click in the file name text box and type a name for the file. Step 4. Next, to save the file in another format, click on the down arrow save as type and choose a format. Step 5. Click on save. The word save the file and the new file names appear on the title bar. जैसे आपकी फाइल वो सेव हो जाएगी उसके बाद न्यू फाइल नेम का जो टाइटल बार है वो आपके सामने शो हो जाएगा. ठीक है ना. इस फोल्डर के अंदर देख रहे हो आप फाइल नेम दे रखा है सेव एज डॉक्यूमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 97 और 2003 फॉर्मेट. मतलब कि आपको सेव डॉक्यूमेंट करना है किसमें? ये 97 विंडोज और 2003 वाले विंडोज में. If you want to open your document in some other computer which is use lower version of the Word like Word 97 or 2003, then you can save document you have created in Microsoft Word 2010 in a variety of others format such as text file or Word 97 2003 format. Step 1. किस टाइप से आप उस अदर कंप्यूटर में आप जो है फॉर्मेट करोगे? स्टेप 1. क्लिक द फाइल टैब पे क्लिक करोगे. देन बैकस्टेज व्यू विल अपीयर. स्टेप 2. क्लिक ऑन द सेव एज बटन. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. डायलॉग बॉक्स जैसे अपीयर होता है तो आप क्या करोगे? स्टेप 3. नेक्स्ट, क्लिक इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप और नेम फॉर द फाइल. स्टेप 4. टू सेव द फाइल इन वर्ड 97 2003 फॉर्मेट. किसमें सेव करोगे आप? वर्ड 97 वाले और 2003 फॉर्मेट में. क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ सेव एस टाइप. आपका सेव की तरह एरो का डायरेक्शन आएगा, वहां पे आप सेव करके टाइप करोगे. स्टेप 5. क्लिक ऑन वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट. और स्टेप 6. क्लिक ऑन सेव. और किस पे करोगे? सेव पे आप क्लिक कर दोगे. नाउ यू कैन शेयर the word save the file in Word 97 and 2000 format and the new file name appear on the title bar. Now you can share your document to people who do not use Microsoft Word 2010. Sharing a document in PDF or XPS format. You can save Word document in PDF or XP format. आप जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है PDF और XPS फॉर्मेट भी सेव कर सकते हो. कैसे? यू कैन ओपन अ PDF फाइल बाय यूजिंग एडोब फ्री एक्रोबैट रीडर. वहां पे आप जाके यूज करोगे फ्री एक्रोबैट रीडर्स पे आप क्लिक करोगे. यू कैन ओपन XPS फाइल्स. वहां जाके क्या ओपन कर सकते हो? XPS फाइल बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट XPS व्यूअर. Windows 7 will come with an XPS viewer and
an XPS printer driver so that user of Windows 7 will be able to exchange XPS document. स्टेप 1, अब इस चीज को आप कैसे क्रिएट करोगे? स्टेप 1 उसको कुछ फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप्स को क्लिक ऑन अ फाइल टेप, बैक स्टेज व्यू will appear. Then step 2, click on the save as button, then save as dialog box appear. Then step 3, click in the file name text box and type a name for the file. ठीक है. Step 4, to save the file in PDF or XPS format, click on the down arrow of as save as type. Step 5, click on PDF or XPS document. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन सेव, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दोगे. ये बच्चों, ये जो सारी चीजें हैं आपको प्रैक्टिकल जब आप कंप्यूटर पे करोगी तो ही आपको समझ में आएगा. ठीक है. द वर्ड सेव एज द फाइल इन PDF और XPS फॉर्मेट एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार, और न्यू फाइल जो है आपके सामने शो हो जाएगी. नाउ यू कैन ओपन PDF डॉक्यूमेंट इन एडोब Acrobat Reader and XPS document in Microsoft XP Viewer. Next है आपका व्यू मेन्यू. The view menu in MS Word 2010 has the following options. इसमें व्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट लेआउट. This option view the document as it will appear on the printed page. Full screen. It view the document in full screen reading view in order to maximize the space available for reading or commenting on the document. To read and document follow the given step. अब उसको आप कैसे रीड करोगे? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू रीड. जहां आप रीड करना चाह रहे हो उस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है. स्टेप 2, ऑन द व्यू टेप. उसके बाद आप व्यू टेप पे जाओगे. इन द डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप क्लिक फुल स्क्रीन रीडिंग. स्टेप 3, टू मूव फ्रॉम पेज टू पेज इन अ डॉक्यूमेंट डू वन ऑफ द फॉलोइंग. क्लिक द एरो इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द पेज, प्रेस page down and page up or spacebar and backspace on the keyboard. Click the navigation arrow at the top center of the screen. स्क्रीन के ऊपर जो नेविगेशन एरो दे रहेगा वहां पे आप क्लिक करोगे. नेक्स्ट है आपका वेब लेआउट. इट व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज अ वेब पेज. व्यू टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रूलर. इट व्यू द रूलर्स यूज टू मेजर्स एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट. जूम. इट शो द जूम डायलॉग बॉक्स टू स्पेसिफाई द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट. इन मोस्ट केसेस वी कैन ऑल्सो यूज द जूम कंट्रोल इन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो. क्विकली जूम द डॉक्यूमेंट. स्टेटस बार जो होता है वो बॉटम साइड में होता है कंप्यूटर में. वहां आप जो है जूम को कंट्रोल कर सकते हो, उसको जूम आउट और इन कर सकते हो. ठीक है. टू जूम द डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. कैसे करोगे उसकी कुछ स्टेप्स बता रखी है आपको. क्लिक ऑन व्यू टेप. स्टेप 2, क्लिक ऑन जूम. द जूम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. Step 3, click on the zoom setting. Step 4, click on OK. The document appear on screen using the new zoom setting. Zoom setting do not affect the arrangement of text when we print the document. Zooming setting जो है जहां आपका टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. अब वर्ड के अंदर अपन जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपन ने वर्क किया है, फाइल को ओपन किया, तो किस प्रकार आप वापस से क्लोज करोगे. यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट टू रिमूव इट फ्रॉम योर स्क्रीन. स्क्रीन से आप कहाँ रिमूव होके आप आओगे. क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट डज नॉट मीन दैट यू आर एग्जिटिंग द वर्ड प्रोग्राम. क्लोज का मतलब ये नहीं होता है कि आप वर्ड प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे. मतलब जिस फाइल में आप वर्क कर रहे हो उसको क्लोज आपको करना है. तो कैसे करोगे. बिफोर क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट यू शुड सेव एनी चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट.
क्लोज करने से पहले डॉक्यूमेंट में अगर आपको जो भी चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब पे जाओगे, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द क्लोज बटन। जैसे आप क्लोज बटन करोगे द फाइल क्लोजेस और फाइल आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, क्लास 4th। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें फर्स्ट है MS Word allow us to create a document. Yes, this statement is right. MS Word is part of MS Art. No, Microsoft का ये पार्ट है, इसलिए फॉल्स है। थर्ड, MS Word allow us to change the font style and font size through the artistic letters. Yes, ट्रू होगा आपका ये। नेक्स्ट, an icon for the program appear on the window taskbar. Yes. Then we cannot save Word document in PDF or XPS format. False. ये स्टेटमेंट आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर जो भी आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसको मैं 1 टाइम सिलेक्ट कर रही हूँ। MS ऑफिस, टेबल, एम्प्टी, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट। अब इनमें से सर्च करके आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, 5th क्लास, सॉरी 4th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन इंसर्ट डेटा इन डैश, क्या आएगा? टेबल फॉर्मेट। राइट ऑन फर्स्ट। देन सेकंड, ए डैश इज द बेस्ट फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो टेम्पलेट्स आ जाएगा आपका। MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? MS ऑफिस का। राइट ऑन 3, यहां से सर्च करके यहां लिखना है। देन द डैश अपीयर ऑन द स्क्रीन यूजिंग द न्यू जूमिंग सेटिंग, क्या आएगा? डॉक्यूमेंट। डैश, सॉरी, एंड डैश डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1 अपीयर ऑन द स्क्रीन, एम्प्टी। राइट ऑन 5, यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, आपको यहाँ से ढूंढ के ही आपको यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक तक तो वर्क आपको बुक में करना है। उसके बाद जो इसकी क्वेश्चन आंसर की और हार्ड वर्ड्स की पिक भेजी जाएगी उसको आपको कॉपी करके कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।